If you are new to our channel, subscribe, like and don't forget to share. First of all, we define the electric field lines. So an imaginary line, okay, drawn in the region of electric field in such a way that tangent to it at given point that gives the direction of electric field intensity at that point. Okay, this is the first definition. Now if we talk about the properties of electric field lines, so what are the properties of electric field lines? First one, electric field lines, these are the imaginary lines. Second property, electric field lines, they start from positive charge and terminate to the negative charge. Third property, electric field lines, they will never form a closed loop. Fourth property, electric field lines, they will never intersect each other. Why? Because at the point of intersection, there are two electric field intensities directions, which are practically impossible. Okay, so that's why two field lines will never intersect each other. The next property is electric field lines. Number of electric field lines are directly proportional to intensity of field, or else you can say electric field intensity is directly proportional to number of electric field lines passing through a unit cross sectional area. Let's say if we talk about area A and area B here, okay, cross sectional area is same in the two region, but number of electric field lines in region A is 5 and in region B it is 3. So definitely intensity of electric field in region A is greater than that of the electric field intensity in region B. Then sixth property, electric field lines are always perpendicular to the surface of given conductor. Okay, and it is independent from the shape. Here you can see, here the shape is arbitrary. Still the electric field lines, they are perpendicular to the surface of conductor. And seventh property, electric field lines are always absent inside the conductor, which is also known as electrostatic shielding. Okay, shielding of electric field from a certain region, that is electrostatic shielding. I hope all the seven properties are clear to everyone. Yes, sir, clear. Okay. Yes, sir. Good. Now after that, two more properties are there. Okay. So here we go to the next one. How many were there? 6 we have discussed or 7? 7. 7. Okay. Now eighth property of electric field, right? If the field is induced one, okay, or the charges are induced, right? Let the charges are induced charges. We have already discussed about the induced charges, okay, charging by induction in that case. So if the induced charges are there, in that situation, the electric field lines, they will form a closed loop. Okay, electric field lines, they will form a closed loop. But in which case, when the charges are induced charges. Next property. Now suppose if I talk about the two like charges, they can be positive charges, they can be negative charges. So if two like charges are there, let's say positive, positive. So what will happen? They will repel each other. So if they repel each other, in that case, the electric field lines, they will expand perpendicular to the length or perpendicular to the interaction line. You can see in this certain region, the field lines are stretched. This is the certain region in which field lines are stretched or expanding, and that is perpendicular to the
interaction line. This is the interaction line. Now next property, 10th, what is that? If the charges are the unlike charges, okay, if unlike charges are there, let's say one is positive and another one is negative. So in this situation, the charges, they will attract each other. So when the charges are attracting each other, what will happen? The length of the electric field lines, that will decrease when they are coming closer. So what we will say, the electric field lines will contract lengthwise. Okay, the electric field lines, they will contract lengthwise. So that is the next property of the electric field lines. I hope all the 10 properties are clear to everyone. Tell me. Yes, सर ये sir. नाइन्थ वाला एक बार वापस समझाओ ना. Yes, sir. 9th वाला वापस समझाना है. ओके बेटा, देखो 9th को समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं सिंपल सा. मान लीजिए दिस इज द इनिशियल सिचुएशन ऑफ द टू चार्जेस. ठीक है, लाइक चार्जेस, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. ठीक है. नाउ ऋषिकेश, विल दे रिपेल ईच अदर और नॉट? टेल मी. Yes sir, they will repel. दे विल रिपेल. तो मान लेते हैं पहले यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ठीक है. दे विल बी away from the negative charges, right? Or you sorry, towards the negative charge in both the cases. Now after Yes, some time, due to repulsion, the distance between them will increase or decrease? Increase. Increase. ठीक है, distance increase हुई तो can I say the electric field lines, they expand lengthwise? Sorry, expand perpendicular to the length. Yes sir, got it now. Clear now? Yes. Okay, I hope there is no doubt between in the all the 10 properties. Yes or no? Yes, sir. No doubt. Okay. Yes sir. Now, actually in the morning we have drawn so many diagrams. Again, I would like to draw, and few new questions you will find here. Okay, for the electric field lines. So, and see, notes are already given to you, so I will give you sufficient time to write that. Okay, so one by one we will discuss. The first one, I am dealing with the point charge, and which is positively charged. Okay, so again, let's say there is a positive charge. Now if it is a positive charge, then the field lines, the electric field lines will be away from the positive charge. Remember that these are point charges. Still we have shown the dimension of these charges. Okay, so be very careful when you are drawing the electric field line. So this is because of the positive charge. Now if I talk about the negative charge, let's say a negative charge is there. So if negative charge is there, so again the direction of electric field lines, that will be towards the negative charge. Okay, so this is for the negative charge, Q less than 0. Now second situation, if we take, there will be like charges. Now in like charges, again two possibilities are there. Okay, what possibilities? That both the charges can have equal magnitudes and can have unequal magnitudes. Okay, so over here first case we take when they have the equal magnitudes.
So if they have the equal magnitudes, in that case, initially before starting this, we will simply draw a line which will be perpendicular to the axis of these two like charges. Okay, they can be positive charge and can be negative charge. Then the field lines, as we have drawn, it should be like this. Okay, and because it is positive charge, so field lines will be away from the positive charge. In both the cases, we will draw it in the same manner. But the most important part is the number of lines. Okay, suppose in the left portion I have drawn 7 lines, 7 or 8 lines. So here also it should be 8. It should not be more, it should not be less. As we have mentioned this thing that equal charges, magnitude is same. Okay, and this is the certain region which is free from the field. You can see the center portion dashed line, it is free from the electric field lines, means there is no electric field. Okay, now if suppose Q1 is not equal to Q2, yes beta? सर तो इसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे. हाँ, इस रीजन को, पर एक्चुअली शील्डिंग को डिफाइन किस में किया है, कंडक्टर्स के अंदर स्पेशली. ओके, तो यहाँ पर हम इसको शील्डिंग नहीं बोलेंगे. यहाँ पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, विच विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके ओके सर. नाउ सपोज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल. अब मान लीजिए चार्जेस जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक चार्ज को मैं बड़ा और एक चार्ज को छोटा बनाऊंगा. ओके, अब इक्वल चार्जेस है, पहले हम ऑलरेडी बना चुके हैं पॉजिटिव के लिए, यहां पर हम नेगेटिव के लिए बनाएंगे. ओके, सो आई एम कंसीडरिंग द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, both are negative, and the magnitude of the Q2 is less than that of Q1. अब इस सिचुएशन में भी हमारे पास एक सर्टेन एक पर्टिकुलर रीजन होगा, और वो पर्टिकुलर रीजन जो है इट विल बी क्लोजर टू Q2. ओके, जहां पर आपको फील्ड लाइंस को एब्सेंट करना है. ओके, डायग्राम विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि एरो साइन, ठीक है, इट शुड बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास चार्ज है, इट्स मैग्नीट्यूड इज मोर. सो मोर मैग्नीट्यूड मीन्स हियर द नंबर ऑफ electric field lines which you will draw must be more. ठीक है, आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई. टेल मी. Yes, sir. Now fourth case I am discussing about the dipole. ठीक है, a dipole is a system of equal and opposite charges. जैसे आपने डाइपोल के अंदर डाइपोल पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, लाइक HCl. ठीक है, HCl, chlorine has more electronegativity, so it will have partial negative charge, while hydrogen has less electronegativity as compared to chlorine, so it will be partially positive. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल. ओके, सो इन डाइपोल वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज. तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बनाएंगे डायग्राम स्पेशली फॉर द डाइपोल. So we know the field lines, they will start from positive charge and will terminate to negative charge. This is the first part. और यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी फील्ड लाइंस आप पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकाल रहे हैं, उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आपको इसमें एंटर करवाना है. ठीक है, so this will be the system in case of dipole.
और एरो का स्पेशली ध्यान रखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे एरो साइन बाहर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एरो साइन विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस. Okay, so this is the dipole. Again ध्यान दें, magnitude of charge Q2 that is equal to magnitude of charge Q1. अब इस डाइपोल में ऐसा हो सकता है कि डाइपोल तो है बट मॉड्यूलस ऑफ Q1 is greater than मॉड्यूलस ऑफ Q2 for an electric dipole. For डाइपोल कर देते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पे डाइपोल की बात कर लेते हैं. एक पे चार्ज ज्यादा, एक पे चार्ज कम. क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए? यस सर. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो उस सिचुएशन में देखिए डायग्राम वैसा का वैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर पाएंगे हम उसमें. ठीक है, एक को पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने और दूसरे को हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया. लेट्स से लेफ्ट साइड वाले को मैंने पॉजिटिव ले लिया और राइट साइड वाले को नेगेटिव. ओके, सो नाउ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन विल बी देयर, और उस मॉडिफिकेशन को अभी हम यहाँ बता देते हैं आपको. फर्स्ट तो लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. देन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें लेना ही है. अगेन मोर. अब आप देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा शेप में चेंज करना चालू कर दिया है. और नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को आपको कम कर देना है एज कंपेयर टू पॉजिटिव. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. फिफ्थ वन आल्सो. यस सर. Yes, sir. ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, क्योंकि बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बाद में आप बनाएंगे. और ध्यान दें जितने भी सर, डायग्राम बन- आपके सामने बन चुके हैं, ये जो बनाया मैंने, सारे बोर्ड में एक एक नंबर में इतने सालों में आ चुके हैं. ठीक है, एवरी वन इज अ सिंगल क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ ही है ये. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट. सर डन. Done, sir. Okay, shall I clear it now? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ वन. अब जैसे मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर यूं बोलें चार्ज्ड वायर की बात करी मैंने आपसे. लेट्स से अ चार्ज्ड वायर इज देयर. तो चार्ज वायर कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी नेगेटिवली चार्ज वायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमने मॉर्निंग में एक बार कर लिया है. राइट, सो लेट्स से इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. राइट, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. और ध्यान देना हमेशा जब हम फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन करेंगे, तब ये फील्ड की जो लाइंस है ना, दैट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आधा आंसर तो आपका इसकी वजह से आएगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डायरेक्शन बताना ही बताना है. और डायरेक्शन पता करने का एक ही तरीका है कि आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली. अब आप देख सकते हैं, देखिए अगर ऊपर वाले रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, ओके, सो इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव
y एक्सिस, और नीचे वाले के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैन यू सी दैट इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस? यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इस रीजन में अगर मान लो नीचे वाला रीजन है उसको मैं P बोलता हूँ, तो P रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी प्लस जे कैप, और Q रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी माइनस जे कैप. आई होप द सिक्स्थ is clear, 6 point. Yes, sir, please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब हम 7th की बात करते हैं. नाउ सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ प्लेट, ध्यान दें अभी मैंने वायर लिखा, अब हम बात कर रहे हैं चार्ज्ड प्लेट. ओके, तो चार्ज प्लेट के केस में हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव अ प्लेट विद सम थिकनेस. अब थिकनेस है तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ज जो है दोनों तरफ होगा. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ राइट साइड, सो देयर इज पॉजिटिव चार्ज, और लेफ्ट साइड भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर मुझे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनानी है, सो इट्स वेरी इजी. आपको अवे फ्रॉम दी प्लेट लेना है. ठीक है, अब राइट साइड में देखिए डायरेक्शन एरो का मैंने बनाया है राइट साइड ओनली, और लेफ्ट साइड अगर मुझे बनाना है तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड ही जा रहा है. देखिए, ठीक है, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड राइट साइड आ रहा है और दूसरी तरफ लेफ्ट, कैसे? तो यहाँ से वो क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से. ओके, तो चार्ज प्लेट का भी समझ में आ गया आपको, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज प्लेट. Yes. ओके, Yes. चार्ज प्लेट के बाद हम बात करेंगे शीट की, चार्ज शीट. ठीक है, अब चार्ज शीट देख लेते हैं, चार्ज शीट में क्या होगा. और चार्ज शीट आपके जो सिलेबस में है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, ध्यान रखेंगे. ओके, इट विल बी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट. अब इनफाइनाइटली लॉन्ग का सीधा सीधा सा मतलब निकालेंगे आप, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग. ओके, जैसे आपके कंपैरिजन में अगर मैं एक चीटी की बात करता हूं तो चीटी के लिए आप क्या हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इट्स नॉट लाइक दैट. सो अगेन इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं. So let's say this is a positively charged sheet. Now due to this positively charged sheet, if I want to draw the direction of electric field lines, तो direction of electric field lines simply कैसे होगी, देखिए अगर हम बात करें राइट साइड के एरिया में तो फील्ड लाइंस ये हैं आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट डायरेक्शन. और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो उसमें आपके पास फील्ड लाइंस पॉजिटिव है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आई होप 8th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा सबको. हाँ सर. राइट, Yes, sir. अब ये शीट हो गई. अब हमारे पास सिलेबस में एक है चार्ज्ड शेल. ओके, चार्ज शेल की अगर हम बात करते हैं, और ध्यान दें ये 2 नंबर में आया था, Q लेस देन 0 एंड Q ग्रेटर देन 0, उसमें आपको शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी थी. ठीक है, सो दोनों ही मैं यहाँ पे पहले ही बना देता हूँ, Q ग्रेटर देन 0 के लिए, और सेकेंड केस में हम लिखेंगे Q लेस देन 0 के लिए. सो इफ आई टॉक अबाउट द Q ग्रेटर देन 0, देन दिस इज द पॉजिटिव वन. पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस होंगी first perpendicular to surface and second one inside the conductor, they will be absent. ठीक है, और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमें बनाना है टुवर्ड्स द शेल because it is negatively charged.
आप चाहें तो इसमें यहाँ चार्ज शो कर सकते हैं, पॉजिटिव पहले वाले केस में और नेगेटिव दूसरे वाले केस में। ओके, 9 के 9 क्लियर है आपको? यस सर। नाउ इफ वी Yes. टॉक अबाउट अ चार्ज रिंग, ध्यान देना, अब मैं चार्ज रिंग के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब चार्ज रिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए रिंग है विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अब मुझे इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, ओके। और वो पॉइंट जो होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब ध्यान दें, इस रिंग की वजह से मुझे फील्ड चाहिए और फील्ड जो है डायरेक्शन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए, और कहाँ पे चाहिए? पी पॉइंट पे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज है, अब 3D में सोचना थोड़ा, एक वायर से मैंने यहाँ से एक पॉइंट से मैंने फील्ड ली तो कैसी होगी ये? अवे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे से कंसीडर करूंगा, यहाँ पर नीचे एग्जैक्टली नीचे पॉइंट ले रहा हूं तो भी कैसा होगा ये? पॉजिटिव के लिए अवे, ठीक है। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, पी पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक और प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दें, ओके। और इस प्लेन के अंदर फील्ड लाइंस शो करने वाला हूं मैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ दोज फील्ड लाइंस इज लाइक दिस। ये एक ऊपर बनाया मैंने, एक नीचे बनाया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा आपको। आई एम मेकिंग लिटिल बिट बिगर वन हियर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एंड इट इज पासिंग थ्रू दी पी पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो ध्यान दें, फील्ड जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं मीन्स राइट लेफ्ट हर जगह होगा ऐसे, ठीक है। 3D में सोचना, क्योंकि डायग्राम हम 2D बना रहे हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? टेल मी। यस सर। देखो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर थीटा एंगल लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन है। इट विल हैव टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम लिखेंगे ई कॉस थीटा, और दूसरा होगा परपेंडिकुलर, ये जो बनाया है यहाँ पे मैंने, विच इज ई साइन थीटा। तो सारे कॉस कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे, और जो साइन कंपोनेंट है उनका डायग्राम बनाया मैंने ये। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। राइट, यस, सबने ले लिया तो आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइनली पूछा था, ठीक है। और एक बार तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस दिस इंड्यूस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के पूछा, ठीक है। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? लेट मी एक्सप्लेन यू। Suppose there is a plate, okay, or a conducting plate. This is the conducting plate. Now, in the vicinity of this plate, a charge Q is kept. Vicinity means nearby area of the plate. यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, okay. Now first question was, what is the amount of charge induced on the plate? First question, what is the amount of charge induced on the plate? Right. Second one, draw the
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें से पहला आंसर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से कोई दे देगा। बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस? नेगेटिव क्यू बाई टू। नहीं, Negative. नहीं नेगेटिव क्यू सिर्फ सर। Yes, sir. क्यू डैश विल बी माइनस क्यू। Yes, ठीक sir. है, तो इंड्यूस चार्ज कितना आएगा प्लेट पे? माइनस क्यू। यहां तक बात क्लियर हुई सबको? Yes. sir. देन अब हम इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं, तो ये इंड्यूस चार्ज पूरी प्लेट पे इस तरह से इंड्यूस हो चुका होगा, यस और नो? द टोटल अमाउंट इज माइनस क्यू। अब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। Charge. ठीक है, अब बस बनाते जाइए। ये हो गया आपका नेक्स्ट, ये इसके बाद वाला नेक्स्ट, फिर ये इसके बाद वाला नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में हमें करना है। ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। दोनों आंसर क्लियर हो गए इसके क्वेश्चन के? यस सर। वेरी गुड। Yes. अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सेकंड क्वेश्चन? लेट्स से देयर आर द टू प्लेट्स। ओके, two plates are there, identical plates, right? And again, if I keep a positive charge, okay, I have to check this question. ओके, चलो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, पहले केस में मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं P1 एंड P2, राइट? एंड इन फ्रंट ऑफ द P1 एंड P2 वी हैव kept a charge plus Q. Okay, so you have to draw the pattern of electric field lines and what will happen to P1 and P2. Okay, whether they will attract each other or they will repel each other. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मुझे बताइए। सर अट्रैक्ट करेंगे ना? They will attract. पीछे थे। सर दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है कि फिर नहीं होगा? दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है। सर मतलब वो दूसरे में भी इंड्यूस चार्ज ही होगा ना? मतलब ये फर्स्ट वाले में नेगेटिव होगा और दूसरे वाले में वापस पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही। मतलब सर दो अट्रैक्ट करेंगे। They will attract each other. ठीक है, और पैटर्न तो जैसे अभी हमने बनाया सेम वैसे ही बनने वाला है। Yes or no? यस सर। Okay. So I hope the concept of the electric field lines is clear to you. किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर पेट पेट
P2 से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी? प्लेट्स में अंदर तो होगी नहीं फील्ड लाइंस, ठीक है। और जहां तक अगर हम बात करते हैं यहाँ माइनस डेवलप हो रहा है तो इधर प्लस जनरेट होगा और इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? ऐसे। क्लियर बेटा? ओके सर। राइट ना? यस सर। Okay, shall I clear it now? Yes, sir. यस सर। चलिए तो फिर अब अगले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज तो 2 घंटे हैं हमारे पास, आधे घंटे